Hi everyone, I am Rupinder Kaur and here I am with the lesson on Q card, that is the speaking part 2 in IELTS test. So basically it is considered the most difficult, the most complicated task which is assigned to the student and is given with 1 minute. Yes, in that 1 minute you have to prepare everything which you are going to speak for next 2 minutes or until the examiner will stops you. How to prepare is the basic thing which you need to understand to just get command over it and make this task very easy. Here I am having an example question for you, that is, describe a new skill you want to learn. What it is, how would you learn it, where you can learn it, and explain why you want to learn it. This is a simple question. If being asked out of the test, you can answer it very easily in your mother tongue even. But here you need to answer everything in English and don't try to fake your accent, which is important. Don't try to imitate it. Speak in the natural way of your Indian style if you are Indian, or whatever you feel like comfortable. But yes, on the test day, don't try to fake your accent. Other thing is how you will be given with the question. The examiner will give you a paper and a pencil to write something along with the question of your cue card. You will be given the thing like this on the paper, like one question and 3 to 4 bullet points. So the moment he will say you, okay, now your time starts, you can think for a minute and then you have to speak for 2 minutes. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, यूटिलाइज करना है अपने 1 मिनट ਨੂੰ बहुत चंगी तरह वेरी क्विकली एक्टिव होके कॉम्प्लीकेट नहीं करना चीज़ ਨੂੰ, क्वेश्चन ਨੂੰ पढ़ो 2 बार, एज आई से इन ऑल माई वीडियोज़ फॉर ऑल द टास्क, प्लीज़ रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. Then ਹੁਣ क्वेश्चन है न्यू स्किल. ਕਿਹੜਾ स्किल हो सकता है? ब्रेनस्टॉर्म योरसेल्फ. Cooking, driving, learning a foreign language, stitching, painting and n number of skills ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. So मैं suppose ਇੱਥੇ driving बोलूँगी. न्यू स्किल मैं किस तरह का एक ओवल शेप बना लेनी है, दैन मैं एरोज देने हैं उन्होंने. आई विल बी राइटिंग माई मेन पॉइंट्स एंड द मेन वर्ड्स. डोंट फॉरगेट टू राइट वोकैबलरी ओवर हेयर. जिदा बिल्डिंग है, बिल्डिंग ਨੂੰ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਨੈਸ ਵਰਡ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ. ਬਟ ਯੈਸ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ. ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, आई वुड बी सेइंग ड्राइविंग. मैं कितों सीखूंगी इनू? हाउ वुड यू लर्न इट? आई वुड गेट एडमिटेड इन अ ट्रेनिंग स्कूल. Where you can learn it? It's just nearby my residence and many of my neighbors have learned from them. Even my cousin has get admitted in that course and she has told me about the trainers and the staff. Those were very helpful and polite and they teach you very good techniques, you can say, and explain why you want to learn. This is something very personal. मैं कहूँगी कि मैं सीखना because I have to commute to my workplace every day and because I don't know driving, I always have to go by public transportation which takes much of my time, and there are many times when I get late from work and I have to I have to be with the manager to explain all the things which I was very embarrassed with. So वो चीज़ मैं कह सकती हाँ. then ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਲੀ ਏਰੀਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖੂੰਗੀ. ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਟਿਕਸ ਸਿਖਾਵੇ. ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਲਰਨਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਗੈਟ ਥਰੂ ਇਟ.
दैन तुसी उस तो बाद कह सकते हो कि मैं बिल्कुल लाइक स्लो स्पीड नाल पहला जाऊँगी, जल्दी घर तो निकल के, एंड मैं हौली हौली ये चीज़ सीखूँगी। दैन वंस आई विल हैव अ गुड हैंड, मैं प्रॉपरली अपने वर्क प्लेस से कम्यूट कर सकती हाँ। इट विल सेव माई मनी, इट विल एनहांस माई प्राइवेसी, इट विल सेव माई टाइम एंड मैनी अदर थिंग्स। अदरवाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगी ड्राइविंग, बिकॉज वर्क ते जाने तो बिना मैंने फैमिली टूर्स से भी जाना पैंदा, सो ऑलवेज आई हैव टू हायर अ टैक्सी। तो वो भी बहुत सारे पैसे मेरे आ उत्थे खर्च हो जाते हैं। सो तो बैटर है मैं ये अदर थिंग इज़ ये मैनू कंफर्ट दूगा बाय माई ओन टाइम, मैं कदों भी अपने टाइम ते किते भी जा सकती हाँ, मैनू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की या किसी होर चीज़ की जरूरत नहीं होएगी। सो इन अ वेरी सिंपल वे तुसीं इहनूं आंसर करना। अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ जो भी तुसीं क्यों कार्ड नूं आंसर करना है, ऑलवेज स्टार्ट इट इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे। कभी भी ये ना कहो कि हाँ थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपॉर्चुनिटी वाली कोई भी गल नहीं है, बिकॉज वी आर इन द एग्जामिनेशन एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सो सानू पता ही है कि असी क्यों कार्ड का बोलना है। सो तुसीं सिंपली कहना वेल हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट a skill that I really want to learn immediately and that is driving। then तुसीं इहदे बारे एक्सप्लेन कर सकते हो। then cohesive devices यूज़ करो, वोकैबलरी पाओ। वोकैबलरी मैं फिर तो कहूँगी पहला ही इत्थे लिख लो ताकि तुसी भुलो ना। दैन नो रैपिटेशन ऑफ वर्ड्स, प्लीज़ वर्ड्स रिपीट ना करो। एंड जिदा बहुत सारे कॉमन वर्ड्स है उन्होंने अवॉइड करो। एटसेट्रा नहीं कहना, सो ऑन कहो, एंड मैनी मोर कहो, सो ऑन भी अवॉइड करो। दैन वॉट इज़ मोर ना कहो। दैन बिलीव मी कह सकते हो, बिकॉज तुसी एग्जामिनर नाल लाइक एक टॉकेटिव वे दे विच बैठे हुए हो। एंड अदर थिंग इज़ कदे भी तुसी इनू सीधा ही ना बोल जाओ, एक चीज़ छड़ के दूसरी चीज़ से जंप ना करो, उसे अपार्ट फ्रॉम दिस वर्ड यूज़ कर लो। दैन तुसी फरदर मोर यूज़ कर सकते हो। ये मान के चलो कि थोड़ा राइटिंग वाला स्टाइल इतने बहुत बिल्कुल सैट आ जाएगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसलिए सीखना चाहनी हाँ, सैकेंडली मैं इसलिए सीखना चाहनी हाँ। सो वो चीज़ां हो जाएगियाँ। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा किमें बैनीफिट करूँगा, थोड़े पैसे सेव होंगे, थोड़ा टाइम सेव होएगा, एंड थोड़ी प्राइवेसी जो है ऑब्वियसली वो भी थोड़ा मिलेगी। दैन इस तो बाद तुसी वोकैबलरी हो गई, थोड़ी रैपिटेशन नहीं करनी वर्ड्स की, एंड बहुत ज़्यादा स्पीड नाल भी नहीं बोलना, बहुत स्लो भी नहीं बोलना। इनू कहते हैं फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का यह मतलब नहीं होंदा कि मैं फटाफट बोल रही हाँ, यह मतलब होता है कि मैं एक पेस नू मेनटेन करके चल रही हैं। एंड अपनी नैचुरल वे दे विच बोलना, एक्सेंट का बहुत ध्यान रखना, प्रोनाउंसीएशन थोड़ी गलत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ठीक पेस से बोल लोगे चल जूगा, बट बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना कि उन्होंने लगे कि हाँ तुसी जस्ट टाइम पास कर रहे हो। एंड अंटिल एंड अनलैस तुहानू एग्जामिनर जो है वो नहीं कहता कि स्टॉप, दैन तुसी उद तक कोशिश करो कि बोलते रहना। जे थोड़ा कंटेंट खत्म हो गया है, यू कैन जंप टू समथिंग विच इज़ रिलेटेड विद दिस। तुसी एग्जाम्पल्स दे के दस सकते हो कि लाइक वन ऑफ माई कज़न शी हैज़ लर्न दिस एंड नाउ शी इज़ एबल टू डू दिस एंड दिस, और वन ऑफ माई कलीग हैज़ लर्न ड्राइविंग लास्ट मंथ एंड नाउ ही इज़ एबल टू दिस एंड दिस बाय हिमसेल्फ। सो वो चीज़ां तुसी कह सकते हो। सो इनू बिल्कुल सिंपल रखना, बिल्कुल नहीं पैनिक होना। तुसी जो ही क्वेश्चन मिले 2 टाइम रीड करो, एंड दैट मूवमेंट जो भी थोड़े माइंड आइडिया आता, ये ना सोचो मैं बहुत बिल्कुल यूनीक आइडिया ही बोलना है, नहीं वो जरूरी नहीं आ। तुसी अपना नैचुरल बोलो जो भी थोड़ा लगता। इस सिचुएशन में तुसी अपने नाल रिलेट करके जाओ। तुसी स्टूडेंट हो, तुसी वर्क प्लेस से नहीं जाते, तुसी को मैं अपने कॉलेज जाना होंदा, अपने स्कूल जाना होंदा, सो मैनू वेट करनी पैंदी है, तो जिहदे करके मेरा बहुत टाइम खराब हो जाता है। ईवन यू कैन से कि एक बार होया सी मेरे एग्जाम सी, बिकॉज ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कोई स्ट्राइक सी या समथिंग, मैं एग्जाम देन चो रह गया सी या मैं लेट हो गया सी, जिहदे करके आई हैव टू सफर विद माई मार्क्स। वो चीज़ तुसी कह सकते हो। ऑलवेज मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सच तुसी उत्थे बोलना। इट इज़ अबाउट इमेजिनेशन। मैं कहूँगी जो भी ख्याल थोड़े दिमाग च उस पर्टिकुलर टाइम पर आता तुसी उहदे ही बारे बोलो, बट कुछ गलत नहीं बोलना, आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना, बिल्कुल उहदे नाल ही रिलेट करके सिचुएशन नूं चलना। जितों ही तुसी एग्जाम्पल दिंदे हो ना, थोड़ा स्कोर जो है इत्थों तो ऊपर चला जाता है, बिकॉज एग्जाम्पल एक तो है थोड़ा टाइम लेगी, दूसरा है कि वो बिल्कुल इंप्रैसिव वे बना देगी थोड़े वे ऑफ स्पीकिंग का, कि हाँ ये सिचुएशन शायद थोड़े नाल हो चुकी है एंड यू आर स्पीकिंग ट्रू। एंड ये चीज़ का ध्यान रखना जो ही क्वेश्चन है, इस चीज़ के सपोज जो भी एन नंबर ऑफ थोड़े को आइडियाज आता है, जो एक चूज कर लो, फिर एक तो दूजे से जंप ना करो, ओदी ही चंगी तरह बना लो एक बार। एंड
इस चीज़ तो इलावा जो तुसी बोलना है, जो थोड़ा कंटेंट फिर भी खत्म हो गया, तुसी कह सकते हो दैट्स ऑल अबाउट द स्किल आई वांट टू लर्न इन अ वेरी I would say customized time, in a very short time या within a month, because ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ज़रूरत है। सो इस तरीके नाल एंड इसी तरह ही जे तुसी एक होर चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, टेंस। जिद्दां ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्क्राइब अ न्यू स्किल यू वांट टू लर्न, तुसी सीखना चाहते हो इन फ्यूचर यू वांट टू लर्न, बट यू हैव रीसेंटली लर्न भी आ सकता है, तुसी हुणे हुणे सीखिया होवे, सब कुछ सेम चल जूगा, जस्ट तुसी की चीज़ करना है, टेंस चेंज करना, बिकॉज वो पास्ट हो जाएगा, तुसी ऑलरेडी सीख चुके हो, या विच यू आर लर्निंग, तो अज की गल हो रही है, तुसी हुण सीख रहे हो, सो यू नीड टू आंसर इट इन प्रेजेंट। टेंस का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज जो तुसी टेंस का ध्यान नहीं रखा, फ्यूचर वाले नूं पास के विच आंसर करके आगे भुल जाओगे, तुहानूं 7 और अबव बैंड स्कोर मिलणगे, चाहे तुसी कितना भी वधिया बोल के आए हो। सो उत्थे कन्फ्यूज नहीं होना, पैनिक नहीं होना, एंड बिल्कुल नैचुरली फ्लुएंटली तुसी अपने आंसर्स करके आने इन अ क्लीयर प्रोनाउंसिएशन। So with this, thanks a lot for watching this video. Do subscribe my channel, like, share and comment my videos. Thank you once again.